Magic Cafe, Need Waste Hospital and Medical Institute, Pizza Collection, Global Wallpaper, है फिटनेस वर्ल्ड, सुप्रीम गारमेंट। आसनसोल के टैक्स से सज रहा कोलकाता, ये बातें भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने कही है। जी हां, जितेंद्र तिवारी आज जमकर बरसे। इन्होंने पिछले सालों की पूजा की तुलना इस साल से करते हुए कहा कि जिस तरह पिछले साल पूजा किए जाते थे, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ही आसनसोल को सजाया गया, ना ही लाइट के सही इंतजाम, और तो और सड़क के ऐसे हालात कि लोगों को आने जाने में काफी दुश्वारी हुई। जबकि कई बार सरकारी मीटिंग की गई थी, फिर भी लोगों को जाम जैसी हालात से गुजरना पड़ा और ट्रैफिक की वजह कर लोग पूजा ठीक तरह से घूम नहीं पाए। इन्होंने कहा कि बार बार आसनसोल को महरूम रखा जा रहा है, जो ठीक नहीं है। आपको बता दें कि जितेंद्र तिवारी ने आज गोदली में वाक़ा अपने रिहायशी दफ्तर में सहाफियों को मुखातिब करते हुए ये सारे इल्जाम लगाए। ये यही नहीं रुके, बल्कि कई और नुक्तों पर अपनी बातें रखी और जमकर बरसे। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। আপনারা জানেন যে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের এবছর থেকে বিভিন্ন জেলায় দুর্গাপূজার পর পুজো কার্নিভালের একটা আয়োজন করা হচ্ছে এবং এই যে কনসেপ্ট, এটা প্রথম পশ্চিমবঙ্গ যদি কেউ এনেছিল সেটা আমাদের আসানসোলে বার্নপুরে আমরা জানি প্রায় 30-40 বছর আগে থেকে এই প্রথা ছিল যে বিসর্জনের দিন সমস্ত প্রতিমা একসঙ্গে বেরোতো এবং একটা কার্নিভালের একটা লুক দিয়ে সেটাকে আরো পরিমার্জিত করে একটা অন্যভাবে করা হচ্ছে। কিন্তু মূল কনসেপ্টটা আমাদের এই বার্নপুর থেকেই এর উৎপত্তি। আসানসোলের জন্য এটা গর্বের বিষয়। এবং যে কোনো জেলায় আপনারা দেখবেন যে সেই জেলার যে মূল শহর, যে কোনো বড় অনুষ্ঠান সেখানেই হয়। কিন্তু এই পশ্চিম বর্ধমান জেলায় আমরা দেখলাম যে এই দুর্গাপুজোর যে কার্নিভাল, সেটা কিন্তু যেহেতু দুর্গাপুরে কর্পোরেশন ভোট আছে, আসানসোল শহরে না করে দুর্গাপুরে করে দেওয়া হলো। আসানসোল লোকসভায় 7টা বিধানসভা আর দুর্গাপুরে 2টো বিধানসভা। তো এই পশ্চিম বর্ধমান জেলায় যেদিন পশ্চিম বর্ধমানের নাম দেওয়া হয়েছিল, সেদিন আসানসোলের মানুষ দাবি করেছিল যে এই জেলাটার নাম আসানসোল জেলা আমরা চেয়েছিলাম। সেদিন বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে না না, এটা পশ্চিম বর্ধমান জেলা হোক। আলটিমেটলি সবাই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখছি একের পর এক আসানসোলকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। অতীতে আমরা দেখতাম যে কলকাতাকে প্রাধান্য দেওয়া হতো, এখান থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা রেভিনিউ যেত, সেটা থেকে কলকাতাকে সাজানো হতো। এবছরও দুর্গাপূজায় দেখলাম যে কলকাতাকে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। আমাদের আসানসোলের টাকায় কলকাতাকে সাজানো হয়েছে, কিন্তু আসানসোলে দুর্গাপূজার সময় না লাইটের ব্যবস্থা, না রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা, কোনো কিছুই করা হয়নি। এবং শুধু তাই না, এতদিন কলকাতাকে সামনে রেখে আসানসোলকে বঞ্চিত করা হতো। আমি দুর্গাপুরকে ছোট করছি না, কিন্তু শুধুমাত্র যেহেতু দুর্গাপুরে কর্পোরেশন ভোট আছে, দুর্গাপুরকে সামনে রেখে আসানসোলকে আবার বঞ্চিত করা হলো। এই যে কার্নিভালটা করে দেওয়া হলো দুর্গাপুরে, আর আসানসোলের সব নেতারা গিয়ে ওখানে হাততালি দিচ্ছেন, লজ্জাও লাগে না? আসানসোলকে বঞ্চিত করছেন, নিজের চেয়ার বাঁচাবার জন্য আসানসোলকে বারবার বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং তারা গিয়ে দুর্গাপুরে হাততালি দিচ্ছেন। এবং এই যে প্রথা স্টার্ট হলো, এবার তো সামনে বছর প্রত্যেক বছর দুর্গাপুরই হবে। তাহলে আসানসোলের মানুষ যতদিন এই সরকার আছে ততদিন আর দুর্গাপূজার কার্নিভাল আর দেখতে পাবে না। অথচ এই দুর্গাপূজা কার্নিভালের যে মূল কনসেপ্ট, সেটাই আসানসোলের বার্নপুর থেকে তৈরি হয়েছিল। বার্নপুরে আজ 40 বছর আগে থেকে দুর্গাপূজা কার্নিভাল হয়ে আসছে, এবছর হচ্ছে। সেটা বেসরকারি উদ্যোগে হয়, সেটাকে সরকারি উদ্যোগে যখন করা হলো তখন এটাকে দুর্গাপুর নিয়ে চলে যাওয়া হলো। আসানসোলের সমস্ত টাকা চলে যাবে কলকাতায়। আসানসোলের যে বিভিন্নভাবে আসানসোলের মানুষকে যে আনন্দ দেওয়া যায়, সে যে মিন্সগুলো আছে, সেগুলো সরকারি মিন্স চলে যাবে দুর্গাপুরে। আর আসানসোলের মানুষ শুধু ট্যাক্স দেবে। এটা আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা দাবি করছি যে সেম কার্নিভাল যেহেতু আসানসোল সিটি টাউন, এই জেলার সিটি টাউন হলো আসানসোলে সেম কার্নিভাল করা হোক। এখনো সময় আছে, করা হোক, 2 দিন 4 দিন 5 দিনের মধ্যে করা হোক। আর যদি না করা হয় আলটিমেটলি, তাহলে অন্তত এটা ঘোষণা করা হোক যে সামনের বছর থেকে এটা আসানসোলে হবে। এই দাবি আমরা রাখছি। এটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য। এবং শুধু এটা আমার দাবি না, আসানসোলে প্রচুর মানুষের এটা ইচ্ছা ছিল যে এটা আসানসোলে হওয়া উচিত। প্রচুর মানুষ এটাতে দুঃখ পেয়েছেন এবং আসানসোলে যাদের এই দাবি তোলা উচিত ছিল, তারা দুর্গাপুরে গিয়ে হাততালি দিতে ব্যস্ত। দুর্গাপুরের মানুষকে
आज यानी बरोज शनिचर सुबह 9 बजे शेर तालाब सितला आसनसोल में जामिया मुजफ्फरिया की जानिब से कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का एहतमाम मदरसे के ही अहाते में किया गया था। दरअसल इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यकजहती को फरोग देना और साथ ही साथ मौजूदा दौर में मदरसों के ताल्लुक से जिस तरह की बातें और कवानीन रोज बरोज देखने और सुनने को मिल रहे हैं उस पर रोशनी डालना भी इनका मकसद रहा। इनका कहना है कि जिस तरह से लोगों के दिलों में नफरत डाली जा रही है, खासकर मुसलमानों और इनसे जुड़े चीज़ों के खिलाफ, इन्होंने कहा कि आप आएं और खुद देखें कि मदरसे में क्या होता है। आपको बता दें कि इस मौके पे पंडित अरुण मुखर्जी ने शिरकत की। इनके अलावा समाजी खिदमतगार गणेश जी और इलाके के काउंसलर सरवनी मंडल ने भी शिरकत की और सभी ने अपने तासुरात मदरसे के ताल्लुक से पेश किए। उनके घर तक पहुंचाएंगे, यही इंसानियत और भाईचारे की सिखाती है। हम गले मिलाएंगे, ईद के दिन अपनी शक्तियां खिलाकर ईद को अंदाजा करेंगे, क्योंकि नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम नहीं है, इंसानियत का पैगाम नहीं है कि कोई इंसान भाग बन जाए, इंसान को नफा पहुंचाने लगे, इंसान को नुकसान न पहुंचाए। आज के मुख्तसर से प्रोग्राम में थोड़ी देर बात करूंगा और हर घर से ये कहानी उठानी चाहिए कि अपने घर के पड़ोस में बसने वाले गैर मुस्लिम भाई के घर में अगर चूल्हा नहीं जला है तो हम अपने घर का पहुंचाकर उनका हरिया चूल्हा चढ़ाएंगे। अगर उनका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, उनके ठेला वाला है, उसके बाद उस ठेले वाले को अपने घर पर बुलाएंगे और कहेंगे कि बाबू को पढ़ा रहे हो, नहीं पढ़ा रहे हैं, आप रहनुमाई करेंगे, किताब कॉपी पेंसिल खरीद कर उनके घर पर पहुंचाएंगे कि नहीं मेरे बेटे की तरह तेरा बेटा मेरे लिए है, इसलिए पढ़ो, हम उससे कोऑपरेट करेंगे। खुदा की कसम ये प्यार और प्रेम अगर आप पहुंचाएंगे, इसका इतना मुस्लिम असर होगा, इतना बेहतरीन असर होगा कि जिंदगी भर आप इस असर को भूल नहीं सकते हैं। मेरे भाई, नफरत के माहौल बनाने वाले वो जानते हैं इन नफरत की सौदागर में काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हमारे घर पर, हमारे दिल पर, हमारी दीवार पर, हमारे आजाद जवाने पर उनकी हुक्मरानी नहीं, हम नबी की उम्मत है, हम नबी के गुलाम है, नबी का फरमान, नबी का फरमान, नबी की आदत, नबी की कीमत अब तक अपने तक हमसे पहुंचाया, अब बरादरान वतन तक पहुंचाएंगे। नबी की सीरत अगर उसके घर में यकीन की बात पर सब प्रकाश कर लेना बहुत सवाल है। उसके घर में कोई यकीन है, अगर उसके घर में किसी की मौत हो गई है तो घर से अपने घर में हम जाना जरूरी समझते हैं मोहल्ला का, उनके दरवाजे पर जाकर बैठेंगे। यह फतवा दिया जाता है कि मरना हुआ था, अगर मरा है वतन आप उसके दरवाजे पर जाकर बैठेंगे। कभी दहशत गर्दी आ सकती है, कभी गैरतकारी आ सकती है। आपने यहाँ तक फरमाया वो फलदार दरख्त, वो सायादार दरख्त जिससे साया मिलता है राहगीरों को, मुसाफिरों को, चलने वालों को, चाहे वो इंसान चाहे जिस मजहब का रहने वाला हो, इंसान को पार होता हो, पंडित के भी नहीं लगते हो, और वो जाने एक मिलकर रसूल पर पूरे दिन सफाई के साथ सफाई कर रहा, रास्तों को, नलियों को, गालियों के नलियों को वो कहीं बना नहीं ले सकता, उसका लग काफी दूर है, वो कहाँ बना लेगा। आपके घर में उनकी आप धुतकार दे, पंडित जी के घर के सामने रखेंगे तो ये छोटा सा बच्चा हम भगा दे, मुन्ना जी के घर के सामने रखे तो उसकी तासुर की वजह से वाला साथ के एक किया नहीं होगा तुम ना पाके। इसलिए खुदा ने कहा ये फलदार दरख्त में मुझे बैठ दिया, मुझे कोई नहीं हटाएगा भगाएगा। यहाँ कोई धार्मिक वाला नहीं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं, सबको साया और सायादार दरख्त में सांस लेने का, उससे साया से फायदा उठाने का हक किसने दिया? मुझसे इंसानियत ने दिया। फरमाया वो दरख्त जो भरा बना हो, जो फल देता हो, जो साया देता हो, उससे काटना भी पाप है, गुनाह का काम है। ऐसा करना सूखे दरख्तों को काटना, फलदार दरख्तों को काटने से जिस वक्त ने इंसानियत ने बना फरमाया, कैसे वक्त ने इंसानियत के मानने वाली उम्मत किसी दुनिया की बहन की जान और इस वक्त को काटने वाला बने नहीं, जिस मजहब के फैसले फैसला और प्यार ने फरमाया एक दरख्त को भी न काटना बिना वजह, इंसानियत को काटने का काम वो कैसे कर सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं कर सकता। हम वो इंसान है, हम वो इंसान है। हमारे नबी ने कहा भला इंसान बनना चाहते हो, अच्छा मनुष्य बनना चाहते हो, बेहतरीन इंसान बनना चाहते हो, आज इस प्रोग्राम में वो अखबार को बात को नशर किया है, उनको ये बता देना जरूर समझते हैं कि हमारा इस प्रोग्राम में बनने की भी नशर किया है। उन्होंने अपने तासुरात पेश करवाया
ताल्लुक से चुनाव का इजहार करवाया और अपना काम पेश करने का वादा करवाया। वो कौन महान मुतहदिद की शख्स थे जिनका नाम नंगी भी है, तो इस इलाके में बड़े अच्छे अखलाक रखते हैं। उन्होंने मिशन करके अपने धार्मिक अपने इंसानियत की भाईचारे की बेहतरीन मिसाल पर बताया। यहाँ को बंदूका रखा जिस तरह इन मिलतों में फूल गुलाब भी है, मोगरा भी है, दीगर फूल है। आज हमारे देश का भी गुलाब मोगरा और दूध के फूलों की तरह पंडित जी भी मौजूद थे। मौलाना साहब मौदानी साहब, आज का प्रोग्राम किस सिलसिले में हुआ, इसके तासुरात बयान करिए। आज का प्रोग्राम जामिया मुज़फ़्फ़रिया के जानिब से कौमी यकजहती के तौर पर हुआ था। वो इस सिलसिले में हुआ था कि मुल्क में जो मदारिस के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रतें फैलाई जा रही है और बिरादरान वतन के दिलों में जो नफ़रत पैदा की जा रही है, इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि वो लोग आएँ और आकर अपनी आँखों से देखें कि मदारिस में क्या तालीम दी जाती है, किस बारे में पढ़ाई जाती है और यहाँ मोहब्बत सिखाई जाती है या नफ़रत फैलाई जाती है यहाँ से। और हमारे यहाँ जो है मेहमान में हमारे इलाके के पंडित जी भी आए थे, जनाब अरुण मुखर्जी साहब, और यहाँ इस इलाके के सोशल वर्कर जनाब गणेश साहब आए थे, और हमारे इलाके की जो काउंसिलर है शराबनी मंडल साहब, उन लोगों ने आया। वो सब लोग आए और आकर के अपना तासुरात पेश किए, मदारिस में क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है। उन लोगों ने बच्चों के प्रोग्राम को देखा और देख करके अच्छा एक तासुर लेकर यहाँ से गए। माशाअल्लाह। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। आपके फिटनेस को और भी बेहतर करने के लिए अब आसनसोल में आ गया है फिटनेस वर्ल्ड। जी हाँ, हमारे यहाँ डॉक्टर्स की गाइडलाइंस के साथ योगा, एरोबिक्स, जुम्बा, स्टीम बाथ, मिक्स मार्शल आर्ट्स, किक बॉक्सिंग, कार्डियो एक्सरसाइज, टाइकोंडू के अलावा और भी बहुत तरह की फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। फिटनेस वर्ल्ड, बी फिट बी स्ट्रॉन्ग। ट्रेनर्स और डाइटिशियन आपकी मदद के लिए यहाँ मौजूद है। फिटनेस वर्ल्ड, अ कंप्लीट फैमिली जिम हाउस। हमारा एड्रेस है नियर रंजन केबिन, हाटन रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। क्या आप हैं एक मोमो लवर और खाना चाहते हैं मोमो की अलग अलग वैरायटीज? तो अब आपके शहर आसनसोल में आ गया है मोमो मैजिक कैफे, जो मोमो लवर्स के लिए लेकर आया है मोमो की 36 वैरायटीज। स्टीम एंड फ्राइड मोमोज के अलावा तंदूरी मोमो, पिज्ज़ा मोमो, अफगानी मोमो जैसे मोमो की एक से बढ़कर एक वैरायटी। मोमोज के अलावा हमारे यहाँ देसी चाइनीज मॉकटेल एंड शेक का लुत्फ उठाए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आज ही हमारे मोमो मैजिक कैफे आए। द मैजिक ऑफ टेस्ट। हमारा एड्रेस है नियर श्यामा इलेक्ट्रिक, हाटन रोड, आसनसोल। नीडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस,
जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसुसोल। कॉल करें 9883802437 पर। তুই সামনে থেকে সর রে, ওরে সামনে থেকে। হ্যাঁ কোনো রকমের সারা হয়েছিল করোনার জন্য। এবছর একটু ভাবছি একটু বেশি করেই করব, জাঁকজমক করে একটু। এবছর একটু বেশি, আগের থেকে এবছর একটু বেশি দামটা। আগে 600, আগের বার 600 টাকা করে নিয়েছিলাম, এগুলো এখন 1000 টাকা বলছি। বাজার ভালো না, আগেকার তুলনায় দামও কমে যাচ্ছে আর কাস্টমার খুব বার্গেনিং করছে। কারণ এখন কাস্টমার জানে কিসের জন্য, কারণ বলছে পয়সা নেই, দাম বেশি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা জিনিস কিনতে যাচ্ছি তখন তো দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে। এখন পর্যন্ত বিক্রি শুরু হয়নি, কাল থেকে বসে আছি, এখন পর্যন্ত শুরু হয়নি, 2টা 1টা করে বেরোচ্ছে। এই চলছে, এখন বিকেলটা দেখতে হবে বিকেলে কি হয়। यही इंसानियत और भाईचारे सिखाती है। हम गले मिलेंगे, एक अपनी समझ खिला ईद को ताज़ा करेंगे, क्योंकि नबी के पास
अपने घर के पड़ोस में बसने वाले गैर मुस्लिम भाई के घर में अगर चूल्हा नहीं जला है तो हम अपने घर का लंगा उसके घर पहुंचा कर उनका हरिया चूल्हा चढ़ाएंगे। अगर उनका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, उनके ठेला वाला है, उसके बाद उस ठेले वाले को अपने घर पर बुलाएंगे और कहेंगे कि बाबू को पढ़ा रहे हो, नहीं पढ़ा रहे हैं, आप रहनुमाई करेंगे, किताब कॉपी पेंसिल खरीद कर उनके घर पर पहुंचाएंगे। नहीं, मेरे बेटे की तरह तेरा बेटा मेरे लिए है, इसलिए पढ़ो, हम उससे कोऑपरेट करेंगे। खुदा की कसम ये प्यार और प्रेम अगर आप पहुंचाएंगे, इसका इतना मुस्लिम असर होगा, इतना बेहतरीन असर होगा कि जिंदगी भर आप इस असर को भूल नहीं सकते हैं। मेरे भाई, नफरत के माहौल बनाने वाले वो जानते हैं इन नफरत की सौदागर में काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हमारे घर पर, हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पर, हमारे आजाद जवाने पर उनकी हुक्मरानी नहीं, हम नबी की उम्मत है, हम नबी के गुलाम है, नबी का फरमान, नबी का फरमान, नबी की आदत, नबी की कीमत अब तक अपने तक हमसे पहुंचाया, अब बरादरान वतन तक पहुंचाएंगे। नबी की सीरत अगर उसके घर में यकीन की बात पर सब प्रकाश कर लेना बहुत सवाल है। उसके घर में कोई यकीन है, अगर उसके घर में किसी की मौत हो गई है तो जैसे अपने घर में हम जाना जरूरी समझते हैं मोहल्ला का, उनके दरवाजे पर जाकर बैठेंगे। यह फतवा दिया जाता है कि मरना हुआ था, अगर मरा है आप उसके दरवाजे पर जाकर बैठ। इसलिए कह रहा हूं कि आप अगर हिंदुस्तान का डाटा उठा कर देखें, मदरसों का डाटा उठा कर देखें, तो पूरे मुल्क में जो मदारिसे इस्लामिया हैं, चाहे वो मंजूर शुदा हो या गैर मंजूर शुदा, तकरीबन इसकी तादाद 25,000 है। यानी 25,000 मदारिस हमारे मुल्क में मौजूद है। इन मदारिस में जो तालीम दी जाती है, अगर वाकई ऐसा ख्याल किया जाता है कि यहाँ दहशतगर्दी की तालीम दी जाती, यहाँ मुल्क को तोड़ने की तालीम दी जाती, यहाँ नफरत फैलाने की तालीम दी जाती, तो गौर करें दोस्तों, मैं आजादी से पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, आजादी के तकरीबन 70-75 साल गुजर चुके। इन मदारिस से जो 25,000 मदारिस हैं, इनसे हर साल हजारों हजार तलबा अपनी तालीम फारिग करके बाहर निकल रहे हैं, मुल्क के गोशे गोशे में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर वाकईतन गौर करके, अगर वाकईतन इन मदारिस में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती, नफरत की तालीम दी जाती, तो फिर आज पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में दहशतगर्दों का एक चाल, मुल्क की सलामती पे एक सवाल निशान बन जाता। लेकिन क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। इस बात का सबूत है कि हमारे मदारिस में इंसानियत की तालीम दी जाती है, इंसानियत साजी की तालीम दी जाती है, इंसान से मोहब्बत करने की तालीम दी जाती है। और हमारा जो ये तो एक हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि भाई अपने मुल्क से प्यार करना भी ईमान की अलामत है। हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करने की तालीम दी जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो है यकजहती के सिलसिले से बातें बहुत होती हैं, लेकिन जो तवाना मुनाफरत जो है मुल्क की मौजूदा मरकजी हुकूमत की जो है सियासत का एक अहम जरिया हो गया है। और एक मखसूस मजहब के मुखालफत करके ही वो मसंद इक़्तिदार तक जमे हुए हैं, इसलिए जो है फिरका परस्ती को वो लोग हवा देते हैं। लेकिन हम लोग की खुशकिस्मती है कि हमारे मगरबी बंगाल में रियासत की वज़ीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी की क़यादत में फिरका परस्ती को खत्म करने की मुसलसल कोशिश की गई। और अल्लाह का शुक्र है कि इस बार भी दुर्गा पूजा और तमाम त्योहार जो है बहुत पुराने तरीके से गुजरे। और अब कभी जो है रबीउल अव्वल का जो है मौका है, इस वक्त जो है देखिए जो अज़ान वतन की बहुत सारे साथ आ रहे हैं और मुल्क की सजा को जो है बहाल रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लामा इकबाल का एक शेर कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो अगर किसी को जो है ये मान लिया जाए, किसी मजहबी बने तनाज़ुर में नहीं, अगर सिर्फ इस शेर पर ही तो ये कर लिया जाए तो कोई मजहब जो है, वो हिंदू का मजहब हो, सिख का मजहब हो, ईसाई का मजहब हो, मुसलमान का मजहब हो, कोई भी मजहब जो है मुनाफरत के फिरका वाराना हमआहंगी को खलल पहुंचाने की बात नहीं करता है। तमाम मज़ाहिब में जो है हमने सुकून को तरजीह दी गई है, हमने सुकून को फौकियत दी गई है। लेकिन जो है जैसा कि हम लोग मजबूरी समझते हैं, सियासत की मजबूरी। मनोहर राणा का एक शेर है कि परिंदों में फिरका परस्ती क्यों नहीं होता, कभी मस्जिद पे बैठा है, कभी मंदिर पे बैठा है।
तो क्या मैंने हम लोग असफल मखलूकात होकर के परिंदे से भी गए गुजरे हो गए हैं। इसलिए हम लोगों को जो है हर हाल में अमन और शांति का पैगाम वहन करना चाहिए और फिरकावाराना मानवीय की सजा को कायम रखने की कोशिश करनी चाहिए। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।